So about the chromatography technique that we did yesterday, chromatography technique is the technique of separation of the components of a mixture, right? So whatever things we want to separate into the components, we use the chromatography method in which the solids, they are dissolved in the liquid, okay? So we use this method to separate the components of dye, right? So dye, it is a mixture of components and we separate that components with the help of the chromatography method, where we use a paper strip or a filter paper strip, राइट? तो इस फिल्टर पेपर की स्ट्रिप को हमने क्या करना है, जो भी हमारा मिक्सचर है, सपोज डाई मैंने ली है, राइट? तो उसका एक ड्रॉप जो है वो विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी मैंने इसके ऊपर अप्लाई करना है. आई हैव टू प्लेस दिस इनटू अ ग्लास जार. तो हमने ये फिल्टर पेपर को इस ग्लास जार में रख देना है एंड सॉल्वेंट उतना लेना है जो इस स्ट्रिप के, जो आपने लाइन लगाई है ड्रॉप के नीचे नीचे, right? And we take the solvent as water for the dye. So after some time, what you will see that a single spot on the filter paper, it gets converted into 2, 3 or 4 drop, right? 2, 3 जितने भी spots हैं आपको मिल जाएंगे further. So what that convey? क्या पता चलता है इससे? So this means the different components, they are separated in the form of the colors, right? तो yellow, red ऐसे colors जो हैं वो आपको मिल जाएंगे. Okay? The component which is present at the top, जो सबसे ऊपर है, that means this component is more soluble in water, right? तो जो component सबसे ऊपर है, इसका क्या मतलब है कि वो component जो है वो ज्यादा पानी में या उस solvent में ज्यादा क्या है, soluble है. Okay? एंड जो सबसे लोअर में है, दैट मीन्स दिस इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, राइट? तो उसकी पानी में सॉल्युबिलिटी कम थी या उस सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी कम थी, इसीलिए वो पहले निकल आया बाहर. ओके, सो यहाँ पर आपको स्पॉट्स जो हैं वो मैं अलग अलग शो कर रही हूँ, बट इन एक्चुअल दी स्पॉट्स दे आर मर्ज विद ईच अदर. ठीक है बेटा? तो ये कॉम्पोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मर्ज हुए होते हैं, येलो रेड जो कलर्स आएंगे. ओके, सो दिस इज द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक. एनी डाउट टू एनीवन बेटा? क्लियर हो गया? हाँ जी, भूमिका क्लियर है अब? ओके, चलिए. हाँ जी, वो डिपेंड होगा कि आपने क्या सॉल्युबल करना है या किसको सेपरेट करना है. फॉर द डाई वी आर टेकिंग वाटर, ठीक है? अदरवाइज वी कैन टेक सॉल्वेंट एज एसीटोन ऑल्सो, क्लोरोफॉर्म्स भी लेते हैं हम, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी लेते हैं. ओके, तो वो डिपेंड करता है अपॉन द मिक्सचर दैट यू आर गोइंग टू सेपरेट. ठीक है जी? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने स्पिनिच के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करना है, राइट? सो वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द स्पिनिच यूजिंग दिस टेक्निक. वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लावर्स, राइट? Pigments of the flowers we can separate with the help of this. We can separate the amino acids, right? तो जो sugar है वो भी separate कर सकते हैं from the blood with the help of this method. Drugs, they can be separated from the blood with the help of chromatography method. Okay, so these all are the applications of this method, right? So next question is how you are going to separate iron fillings from the sulfur. How you are going to separate the iron fillings from the sulfur? Which technique you will be using? Magnetic separation method. Okay, right? So if we want to separate iron fillings from sulfur, so we will be using the magnetic separation method. Okay, so with the help of magnet we can separate the iron fillings और पीछे क्या रह जाएगा आपका sulfur, that is in the powdered form. Okay, so let's move to the next technique now. Write down the distillation process.
distillation process. When we did the separating funnel method, उसमें हमने क्या कहा था कि separating funnel method में, right, हमने दो ऐसे liquids को separate किया था that were immiscible, जो एक दूसरे में mix नहीं होते थे, right? तो वो एक दूसरे में mix नहीं होते थे, they form two separate layers. एक layer को हमने easily निकाल लिया, पीछे क्या रह गई, दूसरी layer. But what if अगर मेरे दोनों liquid एक दूसरे में merge है, that means what if we are talking about the two miscible liquids, water in alcohol, water in acetone, right? तो हमने उनको कैसे separate करना है? How we are going to separate a mixture of two miscible liquids? So this is by the distillation method. Okay, so distillation method, it is used to separate the mixture of two miscible liquids. Now, which property of these liquids we are using here? हम यहाँ पर उन liquids की कौन सी property को use कर रहे हैं? We are using their boiling points, right? हमने क्या करना है? उन liquids को boil करवाना है, right? The liquid which is having less boiling point, जिसका कम boiling point है, वो जल्दी vapors की form में convert हो जाएगा, right? उसको हमने condense करवा लेना है पहले, पीछे क्या रह जाएगा, दूसरा liquid, right? So what we are using the property of their boiling points. Okay, so it is the method to separate the mixtures of two miscible liquids that differ in their boiling points. तो उनका क्या क्या डिफरेंट है, उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, इसीलिए हम उनको क्या कर सकते हैं, हम उनको सेपरेट कर सकते हैं. ओके, एंड हेयर वी आर टेकिंग द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर और देयर बॉइलिंग पॉइंट, इट इज मोर देन 25 केल्विन. यानी कि यहाँ पर हम वो लिक्विड्स ले रहे हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से ज्यादा है. हाँ जी, क्लियर बेटा? क्या कह रहे हो? So this is called as distillation flask. यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ. This is stand. This is thermometer. No noise, beta. Right? This is water bath. Okay. You can draw side by side.
ओके right, so this is stand, this is condenser, right. यहाँ पर हमने दो वाटर की आउटलेट्स बनानी है, वन ऑन दिस साइड एंड वन ऑन दिस साइड। यहाँ से पानी अंदर डालना है हमने और यहाँ से वाटर को बाहर निकालना है। So these are the two water outlets. So here this is the mixture. Let's suppose we are taking the mixture of water and acetone, where the acetone is having boiling point of 56 degrees Celsius and water boils at 100 degrees Celsius. So you can see they are having a maximum difference of 25, right? So this is the apparatus that we are using for the distillation process. तो हमने करना क्या है, डायरेक्ट हीटिंग नहीं देते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, राइट? तो इनडायरेक्ट वे में हम उसको हीट कर रहे हैं यूजिंग अ वाटर बाथ। तो वाटर बाथ में पानी लिया हमने, सो व्हेन द वाटर इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, तो जो भी हीट है इट इज ट्रांसफरिंग टू दिस फ्लास्क। यहाँ से जो आपका मिक्सचर है एसीटोन और वाटर का, देन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, राइट? सो यू हैव टू सी थ्रू द थर्मोमीटर, ओके? सो व्हेन इट reaches to 56 डिग्री सेल्सियस, राइट? यहाँ से जो वेपर्स हैं एसीटोन के, they will move through the condenser, right? They will start moving to the condenser. कंडेंसर का क्या काम है, उन वेपर्स को ठंडा करना, राइट? तो यहाँ से हम कोल्ड वाटर जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं, राइट? So this cold water is basically cooling those water vapors, those vapors of the liquid. ओके, सो यहाँ से जो भी आपका लिक्विड है द एसीटोन, जो उसके वेपर्स हैं, जब वो इधर जाएंगे, राइट, दे विल कंडेंस, राइट? क्योंकि यहाँ से हम ठंडा पानी डाल रहे हैं, कोल्ड वाटर वी आर एडिंग, तो वो कोल्ड वाटर जो है वो उन वेपर्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, लिक्विड में, राइट? तो दो इनलेट क्यों लगाए हमने, एक इनलेट है यहाँ से पानी अंदर जा रहा है, वो उन वेपर्स को ठंडा करेगा, फिर जो हॉट वाटर है, समझ रहे हो, जो हॉट वाटर है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ओके? पानी यहाँ से आपने कोल्ड वाटर एंटर करवाया है, राइट? जो कोल्ड वाटर है उसने उन वेपर्स को क्या कर देना है, ठंडा करना है। तो पानी ने वो हीट ले लेनी है, वो पानी जो ठंडा था अब वो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम हॉट। तो वो हॉट वाटर यहाँ से आपने बाहर निकाल देना है। बेटा बोल तो रही हूँ, कोल्ड वाटर जो आपने डाला उसने उन वेपर्स को, जो यहाँ से वेपर्स आए हैं, उनको ठंडा करना है बाय टेकिंग द हीट फ्रॉम दोज वेपर्स। उन वेपर से उसने हीट ले ली, वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। जो आपका कोल्ड वाटर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हॉट वाटर में, ठीक है? तो आपने हॉट वाटर को बाहर निकाल देना है, राइट? तो फिर यहाँ से जो आपका लिक्विड है फर्स्ट का, सो इट विल बी कलेक्टेड हेयर इन दिस बीकर। क्लियर हो गया? तो एक एसीटोन जो है वो सेपरेट हो गया, पीछे क्या रह जाएगा, वाटर, ओके? सो इन दिस वे वी डू द डिस्टिलेशन मेथड। हाँ जी बेटा, एनी डाउट टू एनीवन यू कैन आस्क। So this is the distillation apparatus, distillation flask we are taking, water bath, thermometer for seeing the boiling points, condenser, उन water vapors को ठंडा करने के लिए हम condenser use कर रहे हैं, right? तो water vapors ठंडे हो जाएंगे, vapors will be getting converted into the liquid state. तो यहाँ पर हमने वो liquid collect कर लेना। Clear बेटा? Any doubt to online students? हाँ जी भावना। मैम डिस्टिलेशन फ्लास्क को हमने वाटर बाथ में क्यों डाला है?
बेटा जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं हम उनको डायरेक्टली हीट नहीं करते हैं बिकॉज दे कैन कैच फायर, राइट? तो हम उनको इनडायरेक्ट वे से वाटर बाथ में हीट करवाते हैं। ओके मैम। हाँ जी, क्लियर बेटा, राइट? डिस्टिलेशन क्लियर हो गया। इसमें हमने बस ये याद रखना है दैट वी आर गोइंग टू टेक अ डिफरेंस ऑफ 25 केल्विन, राइट? Write down the second method. After distillation, we are going to do the fractional distillation. In the distillation process, what we studied कि हम वहां पर दो miscible liquids को separate करते हैं जिनका boiling point का difference at least 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन हो। बट what if कि अगर मेरे पास दो ऐसे liquids हैं जिनका ये जो difference है ये 25 से कम हो, तो फिर हम उनको कैसे separate करेंगे? How we are going to separate two miscible liquids that are having the boiling point difference less than 25 degree Celsius और 25 Kelvin? तो उनको सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, क्लियर है बेटा? सो the two liquids that we are having, they are having less boiling point difference, यानी कि अगर मैं एक को बॉईल करवाऊंगी, इवेपोरेट करवाऊंगी, तो दूसरा भी उसके साथ रेंडमली हो जाएगा, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि हमें कुछ ऐसा मेथड ऑप्ट करना चाहिए जिससे क्या होगा, जो फर्स्ट वाला लिक्विड विच इज हैविंग लेस बॉइलिंग पॉइंट, वो जल्दी से अगर हम कूल डाउन करवा लें, समझ रहे हो, राइट? इस मेथड में क्या हो रहा है, हमारे दोनों लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कम है, यानी कि अगर मैं एक को इवेपोरेट करवाऊंगी, बॉईल करवाऊंगी, राइट, तो दूसरा भी क्या पता इमीडिएटली 4-5 डिग्री गैप के साथ ही दूसरा भी जो है वो इवेपोरेट हो जाए, ठीक है? तो हम फिर दोनों को कैसे सेपरेट करेंगे? तो यहाँ पर हमने क्या करना है, व्हाट वी आर डूइंग इज कि जो हमारा पहले लिक्विड बॉयल हुआ, इवेपोरेट हुआ, राइट, उसको हमने जल्दी से ठंडा कर लेना है यूजिंग द कंडेंसर, या हम कुछ ग्लास के बीड्स यूज करते हैं जो उस वेपर्स को जल्दी से ठंडा कर देते हैं। गेटिंग द पॉइंट, राइट? वी आर यूजिंग अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हेयर विच कंटेन द ग्लास बीड्स। तो वो जो वेपर्स है, जब वो ग्लास बीड के साथ टच होते हैं, वो कूल हो जाते हैं, दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। तो कूल होने के साथ ही वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, फिर जो हमारा दूसरा है वो वाला आ जाएगा लिक्विड, एंड फर्दर इट गेट्स कूल्ड, ठीक है? तो दोनों वेपर्स जो है वो एक दूसरे में मर्ज नहीं होंगे। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सेपरेट द टू लिक्विड्स दैट आर हैविंग द डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन। क्लियर, राइट? सो लेट्स मेक द डायग्राम. So this is the fractionating column. This contains glass beads. Right? So the apparatus is same from here, जो आपने पीछे distillation flask वाला बनाया है, just fractionating column is introduced now, right? So ये एक न्यू चीज हमने इंट्रोड्यूस की है यहाँ पर बस. Rest is same. So here we have taken the mixture of alcohol and acetone. So this mixture
is acetone and alcohol, right? Where acetone is having a different, boiling point of 58 degrees Celsius and this is having 65 degrees Celsius. Right? तो 11 degrees का इनमें फर्क है, right? The difference is 11 degrees. So how we are going to separate them? With the help of fractional distillation method. तो यहाँ पर पहले जो है वो एसीटोन के वेपर्स बनेंगे, एसीटोन के वेपर्स यहाँ पर जाएंगे, they will undergo condensation fast using the or by touching the glass bead, right? So then they will move to the condenser जहाँ पर वो और cool down हो जाएंगे,